लास्ट क्लास में हमने आई थिंक सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, गैल्वेनोमीटर, राइट? In this chapter, we start with introduction of electromechanical instruments, right? Indicating instruments, and in these instruments, we will discuss some important definitions like damping factor, damping ratio, okay? So, like this indicating instrument, the important three important uh, conditions for generation of torque, deflection, and controlling a damping torque. These are the define the complete operation of any and electromechanical instruments, indicating instruments. Okay. Then we discuss deflection, torque, controlling torque, spring control, how the spring control the movement of pointer. Then some equations, right? So these all uh, points are very important for study the galvanometer. ठीक है, तो उसके बाद हमने गैल्वेनोमीटर एक बेसिक हमने स्टडी किया था, ये व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर, हाउ इट्स वर्क, एंड व्हाट इज द टॉर्क इक्वेशन फॉर द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, so what is the torque equation, all this important discussion is. If there is any doubt in this topic is there, you can ask. आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है इसमें, अगर नहीं है तो हम फर्दर मूव कर सकते. ठीक है, ओके. तो गैल्वेनोमीटर में एक बार हम शॉर्ट में दे देते हैं कि व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर एंड हाउ इट इज वर्क, राइट? तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर दैट इज योर फ्रंट व्यू एंड ये टॉप व्यू है. ठीक है, तो आपके पास एक मूविंग कॉइल, आयरन कोर, ठीक है, with this moving coil we have a pointer attached with this moving coil and as well as a spring, controlling spring. ठीक है, तो ये कंप्लीट असेंबली आपके एज ए गैल्वेनोमीटर की तरह वर्क करती है. ठीक है, तो इन दिस गैल्वेनोमीटर वी डिस्कस द मूविंग coil, suspension, mirror and torque head. Moving coil is basically torque current carrying part of the galvanometer basically. ठीक है, जिसके थ्रू आपको करंट फ्लो कर रहा है. एंड सस्पेंशन इट्स विच इज connected with your current carrying coil and control the movement of pointer. Mirror also, which is used to cast the beam on the scale. ठीक है, at torsion head control the position of coil as well as adjusting the zero on galvanometer. ठीक है, after that we discuss the some important torque equation भी आप इसे कह सकते हैं, working and of galvanometer and equation, torque equation of the galvanometer. ठीक है, इसमें हमने फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया व्हाट इज द डिफ्लेक्शन. हमने थीटा बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट किया, वैल्यू ऑफ थीटा, कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट आई हम दे रहे हैं तो उस केस में हमारे पास, ठीक है, थीटा क्या होगा. ठीक है, अगर हम करंट अप्लाई कर रहे हैं, राइट, टू योर कॉइल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट किया. फर्स्ट हमने फाइंड आउट इक्वेशन राइट की, डिफ्लेक्शन टॉर्क, TD. TD is basically force into distance, right? Force को हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं with the three parameters: number of coil, magnetic flux attached with this coil, input current, and L is your length of the coil. ठीक है, in vertical side, right? All these factors are involved in force.
ठीक है। तो अगर हम फोर्स को इस फॉर्म में डिफाइन करें तो वी पुट दिस वैल्यू इन आवर टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन पुट करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस L इंटू डी क्या आ जाएगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइड लेंथ है ये आपकी, तो ये कंप्लीट क्या दिखा देगा आपका एरिया। वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल लेंथ आपको मिल रही है, वर्टिकल L, हॉरिजॉन्टल D। ठीक है, तो कॉइल की आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल पता चल जाए तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो वी रिप्लेस L इंटू डी विद द एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया, L इंटू डी इज इक्वल टू area. So we have a deflection torque NBAI, right? And NBA, these are the constants. Okay, related with galvanometer. So we can replace this constant with galvanometer constant, or you can say displacement constant of the galvanometer. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम अपनी टॉर्क इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो व्हाट इज TD इज इक्वल टू GI. So TD is, अगर हम डायरेक्टली देखें कि TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट करंट। डिफ्लेक्शन टॉर्क आपके करंट के इक्वल होगी कि जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा आपके डिफ्लेक्शन टॉर्क भी इंक्रीज होगा, राइट। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन। बट अब पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको कंट्रोल भी करना है, सो वी नीड कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, जो हमारे पास एक स्प्रिंग जो आपका पॉइंटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो जनरेट करता है, विच इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग टॉर्क। स्प्रिंग टॉर्क भी सिर्फ आप कह सकते हो, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इक्वल टू TC के थीटा एफ। ठीक है, और ये स्प्रिंग टॉर्क आपकी डिपेंड करती है आपके एंगल पे, डिफ्लेक्शन एंगल, कि आपको पॉइंटर कितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है जब वो अपने एक स्टडी एक जीरो पोजीशन से एक पर्टिकुलर पोजीशन को अचीव कर रहा है। ठीक है, द एंगल विल डिफाइन योर कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, कि इसी के अपोजिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इज अपोजिट फोर्स विच इज जनरेटेड अक्रॉस द पॉइंटर। ठीक है, तो ये आपका थीटा एफ पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो TC इज इक्वल टू K थीटा एफ, इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट एंड थीटा एफ इज डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्टडी स्टेट कंडीशन है तो उसमें क्या होगा कि TD इज इक्वल टू TC एंड देन वी सॉल्व द थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एफ। ठीक है, GI बाय K। ठीक है, थीटा एफ इज इक्वल टू दिस वेक्टर, राइट। तो हम यहाँ से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन करंट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने गैल्वेनोमीटर कॉइल को तो हमारे पास कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, और उस डिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी अननोन करंट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास मिरर डिफाइन किया गया कि अगर हमारे पास मेजरमेंट, हम एक मिरर के थ्रू मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आपको एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए 0 एंगल था, थीटा एंगल जब आपका मिरर बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लाइट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे एंगल थीटा चेंज हो रहा है तो आपके पास जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल वो ट्वाइस ऑफ थीटा होगा। ठीक है, इस ट्वाइस ऑफ थीटा के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल, फॉर द स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल द डिफ्लेक्शन इज एक्सप्रेस्ड as the product of the radius and angle of the turn. ठीक है, so by the reflection beam it is product of radius and angle of turn। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1000 इंटू 2 थीटा, ये आपके पास रेडियस 1000 मिलीमीटर एंड एंगल ऑफ टर्न इज 2 थीटा एफ। यहाँ से हमें वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्केल पे वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये मिरर का ऑपरेशन एक सिंपल, आपके पास जैसे जैसे एंगल, ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है मिरर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसके ट्वाइस में आपका यहाँ पे एंगल होगा, एंगल ऑफ टर्न ऑफ द मिरर। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल Trias novel galvanometer moment।
इसे आप डियासोनोमीटर मोमेंट भी आप बोलते हो, ठीक है। दिस इज योर बेसिक मीटर, दिस इज जनरली रेफर्ड टू एज ए पीएमएम टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन वन ऑफ द पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पीएमसी इज योर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्टली वो पूछ रहे व्हाट इज द प्रिंसिपल, एक्सप्लेन करो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल सेम दिया गया है जो हमने अब तक पढ़ा है। ये आपका टॉप व्यू मैंने बताया था कि आपके पास ये कोर है, ये आपके पास स्विंग है, आपकी मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट्स, और ये पॉइंटर जो आपका अटैच्ड है आपके स्प्रिंग के साथ और मूविंग कॉइल के साथ, एंड दैट इज योर स्केल, ठीक है। यहाँ पे स्केल होगा, राइट। सो दिस इज करंट सेंसिटिव डिवाइस कैपेबल ऑफ डायरेक्टली मेजरिंग ओनली वेरी स्मॉल करंट। तो हमारे पास टीएसोनोमीटर हम यूज करते हैं स्मॉल करंट मेजरमेंट। अगर स्मॉल करंट की बात करें तो व्हाट डज इट मीन कि इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट इज यूजफुल एज ए मेजरिंग डिवाइस इन ग्रेटली इंक्रीजिंग द प्रॉपर एक्सटर्नल सर्किटरी, ठीक है। अगर हम इसे और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वी नीड टू सम मॉडिफिकेशन so that we can prove the range of measurement, ठीक है। ये आपके पास एक 3D इमेज दी गई है, ठीक है, जिसमें आपके पास पॉइंटर है, ये स्केल लगा हुआ है, ये मैग्नेट्स हैं, ठीक है। ये करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। जो ये कॉइल है कनेक्टेड है आपके पॉइंट इसके साथ, एक कॉइल आपके साथ मैग्नेट के साथ, इसके साथ करंट कैरिंग कॉइल के साथ कनेक्ट है। वन इज योर स्प्रिंग कनेक्टेड विद स्प्रिंग, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंपल डियासोनो this and this DM meter is basically and used for as a DCM meter, ठीक है। DCM मीटर, इसको हम मॉडिफिकेशन, हम इसमें लिमिटेड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, व्हाई, बिकॉज द मूविंग कॉइल आर वेरी फाइन वायर्स, ठीक है, वेरी फाइन वायर्स, सो डेलीगेट्स इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर हम इसके मोमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो वी हैव ए लिमिटेशन because this device is very delicate device because of the fine wires of moving coil, ठीक है। तो we can use for the limited, so we have a limited usefulness without modification, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा रेंज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो we need some modification in this basic meter moment, ठीक है। अगर हम इसके करंट मेजरिंग करंट रेंज ऑफ करंट मेजरिंग इंक्रीज करना चाहते हैं, we need some modification, and what is the modification? By placing load resistance across the in a shunt, ठीक है। हम एक शंट में लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे अपने मीटर मोमेंट टीरासोनोमीटर के साथ, so that we can improve the functionality, right, and meter current I around the meter moment, because शंट से क्या होगा, अगर आपके पास लार्ज करंट फ्लो कर रहा है, अगर शंट में हम रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये आपका मीटर है, ठीक है, तो मीटर है, इसके शंट में अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं, शंट रेजिस्टेंस, ये इनपुट करंट आप आई दे रहे हो, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा करंट आपका बाईपास हो जाएगा आपके आरएस के साथ, एंड ये वी फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ द करंट एंड द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज रिक्वायर्ड पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट बेसिकली डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास जो आरएस रेजिस्टेंस है, हम इसकी रेंज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीटर। क्या हमारे पास जो मीटर है उसको हमने कितना करंट देना है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मीटर करंट, ठीक है, जिसको वो इजीली हैंडल कर सके, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करंट को हम बाईपास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शंट रेजिस्टेंस, एंड दिस टेक्निक विल इंप्रूव द मेजरमेंट रेंज ऑफ द कैपेसिटर, राइट। The next is your another type of galvanometer is a ballistic galvanometer, ठीक है। This is also used for measurement of current, okay.
but in this case we have same method, but it improve the measurement and sensitivity. It is highly sensitive as compared to simple diacetyl galvanometer. Okay. The galvanometer, which is used for estimating the quantity of charge flow through, it is called the ballistic galvanometer. Charge flow, basically current. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो? करंट की. Charge flow, right? Estimate the quantity of flow of charge, right? The galvanometer measures the majority of charge passes through it in split of current. ठीक है. इसके एडवांटेज क्या, हम एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हम करंट की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज द एडवांटेज ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर. इसका डायनेमिक बिहेवियर होता है, सो वी कैन यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट एट दैट पर्टिकुलर पल्स. जैसे हमारे पास पल्सेस हम देते हैं, ठीक है. अगर हमारे पास करंट एक कंटिन्यूस करंट ना होकर पल्सेस की फॉर्म में आ रहा है, तो हर एक पल्स पे हम जैसे आई dt, पल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक पल्स है, टी है, ठीक है, टाइम इंस्टेंट, एम्पलीट्यूड. तो हमारे पास आई जो करंट फ्लो कर रहा है, इसे हम आई dt, दिस इक्वेशन विल डिफाइन द पल्स. एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपका जो करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर. दैट्स व्हाई फर्स्ट इसमें रिटर्न किया कि मेजॉरिटी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द इट, ठीक है. तो सर्किटरी अगर हम बात करें, लिटिल मैक्सिमम जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है, ऑपरेशन है, सेम है, बट द ऑपरेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, अगर हम वर्किंग एंड करंट फ्लो की बात करते हैं इसमें, तो हमारे पास ये एक पल्स हमने दिया अपने करंट कैरिंग कॉइल को, ठीक है. इस पल्स पे फॉर दैट टाइम इंस्टेंट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट वी अप्लाइड टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है. और यू कैन से पल्स करंट, what is the value of pulse current, which is calculated by the help of ballistic galvanometer. ठीक है. And for that we use the torque equation of the ballistic galvanometer. Okay. So in this torque equation, as you can see, in the ballistic galvanometer the damping constant is 0. We consider the damping constant in this case initially 0. ठीक है. damping का purpose क्या होता है? damping आपका जो oscillation है, unwanted oscillations, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है. ठीक है. we consider first condition क्या, damping constant is 0. So in that, for that for particle pulse we multiply the galvanometric constant with pulse, we call it as a torque. जैसे हम जनरली क्या कहते हैं, PD is equal to GI. ठीक है. तो हम करंट के लेते हैं, यहाँ पे हमने पल्स लिया, पल्स करंट इंस्टेंट ऑफ कंप्लीट करंट ए वेवफॉर्म. ठीक है. यहाँ पे TD deflection torque is GIT, particle time instant. So we can this replace with J D square theta by dt square. ठीक है. ये आपका बेसिकली एक्सेलरेशन है, और यू कैन से एंगुलर मोमेंटम. If we further modify d by dt, J d theta by dt, this factor is called angular momentum, and complete factor this dt by dt is called acceleration. Acceleration. ठीक है. With respect to time. So if ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा ओपन कर लिया इक्वेशंस को. तो हमारे पास जो फैक्टर आता है, जैसे हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं यहाँ पे, तो इसको हमने लिटिल बिट मॉडिफाई किया, GI dt इज इक्वल टू dt. अब पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक पल्स के लिए हमने इसे एक्सप्लेन करना है, तो हमने यहाँ पे dt यूज किया, इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया. तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, x dt. ये फैक्टर क्या है, x आपका
ठीक है, तो इसमें एक्स डी टी विच इज rate of change of angular momentum, right? And the g theta is called total charge of angular momentum in dt time, and theta is charge flow in dt time. ठीक है, तो हमने इसको क्या रिप्लेस कर दिया, अगर हम इसको स्मॉल इंस्टेंट करंट को आई डी टी को हम रिप्लेस कर थीटा, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द चार्ज फ्लो इन dt टाइम, pulse time. ठीक है, theta is basically represent the flow of charge in that particular pulse time, or you can also represent angular momentum in dt time, angular momentum के थ्रू भी, और basically representation हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, we are just replacing the value. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के we are assuming the coil was in rest before impulse current. ठीक है, कॉइल रेस्ट पोजीशन पे, अब हमारे पास इम्पल्स करंट जो है आई डी टी वो 0 है, राइट? तो इस केस में रेस्ट पोजीशन पे है, तो वी कैन से द एंगुलर मोमेंटम इज 0. एंगुलर मोमेंटम ये 0 हो जाएगा फैक्टर, तो यहाँ पे जो फैक्टर है जी थीटा विच इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर इम्पल्स, यहाँ पे 0 हो जाता है. अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे 0 हो गया, तो हमारे पास जो टॉर्क है वो 0 है फर्स्ट कंडीशन में. ठीक है, बिकॉज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0. बट व्हेन द एंगुलर मोमेंटम आफ्टर इम्पल्स, जी थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज द एंगुलर मोमेंटम आफ्टर इम्पल्स करंट. फर्स्ट कंडीशन ये है. सेकंड कंडीशन ये है जब हमारे पास करंट पल्स हम अप्लाई करते हैं. सो जी थीटा इज इक्वल टू आल्सो राइट एज अ जे ओमेगा. Omega is angular velocity immediately after pulse current, and J is the moment of inertia. ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको माइंड में रखना कि हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है. अब जब हमारे पास करंट अप्लाई किया हमें, हम उसे जी थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, बेसिकली टॉर्क टीडी. ठीक है, तो इसको हम दिस फॉर्म भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द टॉर्क इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, कि आपके पास जो पल्स हमने अप्लाई किया उसके बाद जो पॉइंटर है वो उसकी जो कॉइल है स्टार्ट मूविंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस विल कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, आफ्टर द पल्स अप्लाइड, एंड जे इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, जो आपके फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे. सो वी कैन रिप्लेस जी थीटा इज इक्वल टू आल्सो राइट एज जे ओमेगा, और यहाँ से हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू जे थीटा बाय d theta by j. So this is your angular velocity immediately after impulse current. ठीक है, कि आपके पास velocity क्या रहेगी आपकी coil की. So next is your kinetic energy immediately after the impulse. Now what is the kinetic energy? ठीक है, when the current is applied, this is also write as 1/2 j omega square. Simple equation जो आप हमेशा पढ़ते हो. Assume the coil can move up to an angle theta f with kinetic energy. अब इस काइनेटिक एनर्जी से जो आपकी कॉइल है वो एंगल एफ तक मूव करे, एक डिफ्लेक्शन एंगल प्रोड्यूस करे. यानी मींस बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी कॉइल इज डिफ्लेक्टेड अप टू दिस थीटा एफ एंगल. ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन, राइट? सो वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी of the spring in the spring 1 by k theta f square is equal to 1 by j omega square, which is called initial kinetic. अब जिस डिफ्लेक्शन से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर ये अब थीटा एफ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्विंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉइंटर बिकॉज ऑफ द इनपुट पल्स. ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगी, बिकॉज दोनों इक्वल होती है तभी आपके पास पॉइंटर एक स्टेबल स्टेट में स्टडी स्टेट में एंटर करता है. ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन को ट्रू लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हम इसको मॉडिफाई करें 1/2 k थीटा f स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 बाय जे ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को हमने पुट कर दिया, ओमेगा इज बेसिकली जी थीटा बाय जे। ठीक है, तो हमने पुट किया तो वी हैव द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। इसे सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट द अननोन थीटा। ठीक है, ये आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल है, ये अननोन थीटा डिफ्लेक्शन जो आपने कैलकुलेट करनी, विच इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा एंड वी हैव अ कांस्टेंट, दिस फैक्टर इज योर कांस्टेंट, दैट इज योर मेजर्ड और ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली पल्स के लिए हमें कैलकुलेट किया। एक टाइम इंस्टेंट पे पल्स अगर हम देते हैं अपने गैल्वेनोमीटर को, तो व्हाट इज द करंट इन दैट केस, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन, बेसिकली कितना डिफ्लेक्शन आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड द बेसिस ऑफ डिफ्लेक्शन वी फाइंड आउट द अननोन करंट। ठीक है, तो ये आपके पास इन केस ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन है। An advantage and disadvantage of galvanometer. What is the advantage? High sensitive, not easily affected by stay magnetic field. Torque to weight ratio is high. High accuracy and reliability. स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हाईली सेंसिटिव डिवाइस है बिकॉज वेरी डेलिकेट मूविंग जो कॉयल है आपकी, वेरी डेलिकेट कॉयल हम यूज करते हैं एंड वी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। दैट्स व्हाई दिस इज द हाई सेंसिटिव डिवाइस, नॉट इजिली अफेक्टेड बाय स्टे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड हम रखते हैं इसको, एंड टॉर्क टू वेट रेशियो इज वेरी हाई। ठीक है, एंड द हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, it is the advantage of galvanometer, but there is some disadvantage also. It can be used only to measure direct current. Developed error due to factor like aging of the instrument, permanent magnets, and damage of spring due to mechanical stress. ये आपके पास एजिंग फैक्टर है। विद टाइम जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट की है वो एक्यूरेसी डाउन होती है बिकॉज ऑफ द दीज फैक्टर। मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ है वो डाउन हो जाती है, परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है। ठीक है, दिस आर द एजिंग फैक्टर्स, तो दीज आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, यहाँ तक आपको किसी को कुछ पूछना है? इफ यू हैव अ डाउट प्लीज, एनी क्वेश्चन? यस, 45 43 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, नो वन रिप्लाई, व्हाई? हाँ जी राहुल, 84 रोल नंबर, आर यू प्रेजेंट? मैंने एब्सेंट मार्क करना है। राहुल, रामेश्वर 87 रोल नंबर। यस सर। हाँ जी बेटा, समझ आया? यस सर। अगर समझ आया तो बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन D'Arcy-Novel galvanometer and ballistic galvanometer ऑपरेशन, किस वजह से डिफरेंट है ये? सर इसके पीछे वाला क्लास नहीं किया था सर। वेरी सिंपल एक्सक्यूज है ना, एज यूजुअल ये आंसर हमेशा ही रहता है बच्चों का। ठीक है बेटा, पढ़ लीजिए, अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो मैंने आपके सेशन में मार्क्स में ही आपको पता चल जाएगा आपको कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो मेरी चेकिंग कैसी रहेगी इस बार, तो फिर आप सही से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, तो यही रहेगा। हाँ जी, 94 रोल नंबर सचिन तिवारी, प्रेजेंट? यस सर। आया कुछ समझ?
नो सर, नहीं नो सर। तो पूछा कुछ आपने? नहीं समझ आया तो पूछना सर भी नहीं एक बार समझा। रीड करेंगे तभी मतलब समझ में आए। पिछली स्लाइड्स देखी हैं अभी तक जो लास्ट क्लास में हमने, लास्ट वीक में हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर? स्लाइड देखिए सर, रीड अभी नहीं करें। बेटा थोड़ा सीरियस हो जाओ अपनी स्टडी को लेके, ये आपका थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है ना? आप इसी डिपार्टमेंट में आ गए हो, तो यहाँ पे जो मार्किंग है, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक है ना? आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपके मार्क्स लगने हैं। सभी को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहूँ। तो आपने जो अब तक अप्लाइड साइंस में मेथड देखे हैं टीचर्स का, तो यहाँ पे डिफरेंट है। यस। मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना। आप पढ़ोगे तो वो अपने लिए पढ़ोगे, इट इज ऑल योर चॉइस, यू वांट टू स्टडी और नॉट, ठीक है? यस। चलो, तो फिर आज की क्लास में आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, यहीं पे स्टॉप करूंगा, बिकॉज ये डायनेमिक बिहेवियर ऑफ गैल्वेनोमीटर में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ये आज कंप्लीट नहीं होगा टॉपिक, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक स्टडी करेंगे, डायनेमिक बिहेवियर ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है? इसमें हमने अभी तक जो भी इक्वेशंस पढ़ी हैं, टॉर्क इक्वेशंस, ठीक है, तो वो इसमें हम यूज करते हैं। हाउ वी control the dynamic behavior, what is the dynamic behavior of galvanometer when we applied the current, and how we control the deflection, ठीक है? ये सभी हम डिस्कस करेंगे इन दिस टॉपिक, राइट? ठीक है बच्चों, तो नहीं कोई डाउट है तो मैं आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करूंगा। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.